ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 40-45 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠੀ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਇਤਨੀ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਖਰੀ اور سر سر شگردہ نا بھی طرح میاں صاحب نے وہ گھڑیاں چوتھا لیا میاں صاحب نے آپ کو تو BMW کا نام لیا کہ نہ منصور ہے کہتے کٹ دیو لیکن میں سمجھنا کہ خان صاحب بھی ماشاءاللہ چھوٹے جے چور تو بھی ہیں نا چھوٹی کڑی چور ہے 2013 میں پہلے ایسا کہ یہ دسا گیا ایسا کہ پارٹی لٹی ہے پارٹی کا زرداری ڈاکو ہے وہ لٹی کھادا لیکن جلے ایسا کہ عمران خان آیا وہ شو دیتا سب تو اگر زیادہ اگر پاکستان کی ڈیمیج کیا تو یہ پارٹی نہیں نواز شریف ڈیمیج بلیو کرو کہ سارے ویسے تو جڑا ہے ساڑا ایک وتیرا بنی گیا کہ پاکستان کچھ نہیں جو کچھ بھی آ انگلینڈ جا لیکن میں اپنی آبزرویشن کے مطابق یہ آنا کہ پاکستان بہت کچھ آ جڑا نا اساں وچ خود خامی ہے. اگر آپ کسی ایک ایریا تک مختص ہو جائیں تو اس ایریا میں آپ کو پھر اپرچونیٹیز کم لگنے لگیں گی. آبویسلی وہاں پہ گورنمنٹ کی جابز ڈھونڈنے میں بہت مشکل ہوتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید کہ گورنمنٹ کی جاب کریں گے تو شاید ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا 60-70 ایئرس کا ویٹ کریں گے اس کے بعد وہ جو پینشن کی مد میں کوئی لم سم اماؤنٹ ملتی ہے وہ اس ٹائم تک بندہ زندہ رہتا ہے یا نہیں. لیکن بلیو کرو کہ جڑا تساں تے ٹائم ضائع کرنے ہو وہ نہ کرو اور اپنے کاروباراں پر توجہ دیو. اگر کاروبار نے تساں کرنا چھوٹا موٹا کوئی کم بھی کرنے تو اس کی پراپر طریقے نال کرو. جس طرح ہن اساں نے سر پہ عید بجانی آئی ہن اساں ایتھے کرنے ہیں جس طرح میں یقین نال لا کے سکنا پورے دعوے نال لا کے سکنا کہ اگر جتنی میں محنت ایتھے کرنا اگر میں پاکستانی کیتی ہیں ملینئر وار. السلام علیکم. سب سے پہلے برٹش پاکستان نیٹ ورک کا شکریہ. آپ ہمیشہ بھرپور کوریج دیتے ہیں کسی طرح کا بھی ایونٹ ہو. اور جہاں تک افطار کی بات ہے قاسم بھٹی صاحب ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں اور راجہ پرویز صاحب بابر بھائی یہ ہمیشہ بڑی محبت کرتے ہیں جب بھی وولسل آئیں کیونکہ ان کا تعلق وولسل سے ہے. مگر آج انہوں نے ایک دیسی سٹائل کا جو ہے وہ افطار کا انتظام کیا اور سب سے اس افطار کی جو خوشائند بات ہے وہ یہ ہے کہ ان بھائیوں نے خود سب کچھ تیار کیا ہے. نہ کہ ایک جو روایتی طور پہ آج کل روٹین چلی ہوئی ہے کہ ریسٹورنٹ پہ افطار کیا جائے بلکہ انہوں نے خود بڑی محنت. اور جب میں آیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ بھائی اس ٹائم بھی محنت میں لگے ہوئے تھے. قاسم صاحب کی بات کی جائے تو ہمیشہ کی طرح آج بھی اس افطار میں لیٹ تھے لیکن کریڈٹ میں بابر بھائی اور پرویز بھائی کو دینا چاہوں گا. باقی بہت بہترین قسم کی افطار پارٹی ہے. سب سے خوشائند بات جو اس کی یہ ہے کہ ہم تمام دوست جو ہیں آج ایک مرتبہ پھر مل بیٹھے ہیں آپس میں مختلف موضوع پر گفتگو ہوئی ہے اور کچھ نئے چہروں کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے جو کہ سب سے جو ایک اس محفل کی خوبصورتی ہے کہ آپ جہاں بھی کسی نئی جگہ جاتے ہیں دیگر دوست احباب سے ملتے ہیں تو آپ کا ایک نیٹ ورک ایک تعلقات جو ہیں بڑھتے ہیں جو کہ برطانیہ کی زندگی میں انتہائی اہم ہے. باقی بھٹی صاحب کا ہمیشہ کی طرح شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ہمیشہ جہاں بھی کوئی بھی محفل ہو کوئی بھی موقع ہو بھٹی قاسم ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. جی پرویز بھائی اور بابر بھائی کے لیے یہی کہوں گا جی کہ انواع اقسام کے کھانے تھے. میں کس چیز کا نام لوں میں کہتا ہوں مشروبات سے لے کے فروٹ چاٹ سے لے کے اور جو گریل فوڈ اور اس طرح چکن وغیرہ وہ ایک بہترین اسپیشلی جو کڑھائی بابر بھائی نے بنائی ہے اس کی تو بات ہی یہ الگ بات ہے کہ باقی ہم افطار کر کے تو اتنی طبیعت نہیں رہی تھی لیکن مزیدار کھانا تھا. اور یہی میں کہوں گا کہ ان کو ہمیشہ منتھ 2 منتھ بعد اس طرح کی تقریب کا ہمیشہ جو ہے وہ انتظام کرنا چاہیے تاکہ ہم اس طرح کے کھانوں سے جو ہے محظوظ ہوتے رہیں. راجہ پرویز اور چودھری بابر میرے بہت ہی اچھے دوست ہیں ووسل سے. تینوں نے یہ پلان کیا کہ ہم افطار پارٹی آرگنائز کرتے ہیں. تو پہلے ہمارا پروگرام تھا کہ کسی ریسٹورنٹ میں کریں. روٹین وائز جاتے ہیں کہیں نہ کہیں افطاری پر ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں. پھر ایک تو کھانے کا وہی سٹائل ہے سیم اور دوسرا پھر اس میں نماز کا بھی تھوڑا گیپ رکھنا پڑتا ہے تو وہ مشکلات تھوڑا ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے ہم نے گھر میں یہ سارا پروگرام آرگنائز کرتے ہیں اور کھانا بھی سارا ہم ہوم میڈ کریں گے کوئی باہر سے نہیں. ایون کہ ایوری سنگل تھنگ جو ہم نے دسترخوان پہ سجائی تھی وہ ساری گھر کی بنی. استاد کا نام محمد ندیم ہے. پاکستان وہ جوراباد نال تعلق ہے آزاد کشمیر سو پر جوراباد رہائش ہے انہوں نے. ہوں نے استاد نہیں ہیں کہ اتنے UK میں آیا 2011 تے انہوں نے شگردی میں کوئی تقریباً سال بعد ہی میں انہوں نے شگردی تھلے چلا گیا سا یا انہوں نے کی جڑی ماڑی پرماننٹ جاب سی نا میں جڑی سٹارٹ کیتی ہے میں انہوں نے جڑا وا اتھے میں کم میں دلوایا سی.
ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕੰਮ ਹੀ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਸਦੁਦੀਨ ਮੁਗਲ ਮਦਾਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਮੁਗਲ ਅੱਲਾ ਸੈਦਾਂ ਸੋ ਤਲਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੋ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਗਏ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਸੇ 'ਚ ਹੀ ਅਸਾਂ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਟਾਈਮ ਅਸਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 40-45 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਭਾਈ ਅਸਾਂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠੀ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਇਤਨੀ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ ਡੇਲੀ ਪਿਛਲੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। पहले तो मैं कासम भाई, बाबर भाई, परवेज़ भाई होरां नाल शुक्रिया अदा करना जी। काफ़ी सारे दोस्तों नाल मिलाया भी आ, कुछ नाल नवीं मुलाकातां होईयां, कुछ चलो पहले ने जानने से ते बड़ी खुशी हुई ते पाकिस्तान वाला माहौल दिता ने ते साड़ी जड़ी सच्ची गल है थोड़ा जिहा साड़ा सियासत नाल भी तल्लुकात साड़ी खुराक आवाम ही आनी तो माशाअल्लाह इत्थे इतने बंदे इकट्ठे करना किसी ने बस ना कम नहीं होना ते बड़ा अच्छा असां इंजॉय कीता। हुण साढ़े उस्ताद होर बड़े दूर बैठे हुए बहरहाल उत्थों हसने वे उन्हां की मौका तो देसां ते भाई होरां सवाल कीता सी रमज़ान माशाअल्लाह बड़ा अच्छा गुजरना पिया जी ते मेरा पहला इत्थे रमज़ान आ तो माशाअल्लाह इबादत भी करी ना बगैरगी ना नमाज भी पढ़ी ना तो बड़ा अल्लाह ने करम आ क्योंकि वैदर साथ देना ते इस दौरान मेहनत मजदूरी भी करने इसके हलाल भी कमाने इंशाअल्लाह बड़ा अच्छा वक्त है। पाकिस्तान ने और यूके ने लोगों में जड़े खास कर साढ़े पाकिस्तान ने लोग के बड़ा डिफरेंट तकिया बेसिकली मैं सियासत में भी माड़ा तल्लक सा ते बिजनेसमैन भी सा ते सोशल वर्कर भी समझ सक रहा मैं कि मैं हर दो त्रै फील्ड ही सा अपनी ज़ात पर बड़ा भरोसा और वलदैन ही दुआइयाँ इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसी मैं दोस्तों की मजाका भी करना होना कि तुम तक सो के इंशाअल्लाह असद पाकिस्तान वाला सी और दिन ब दिन बेहतरी सी और इंशाअल्लाह तरक्की भी कर सा वैसे जड़ा मैं अपनी ज़िंदगी जड़ा सीखिया बिलीव करो कि सारे वैसे तो जड़ा साड़ा एक वतीरा बनी गया कि पाकिस्तान कुछ नहीं जो कुछ भी आ इंग्लैंड जा लेकिन मैं अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक आना कि पाकिस्तान बहुत कुछ आ उत्थे जड़ा ना असां विच खुद खामियां बिजनेस नाल तल्लक भी सा माड़ा पट्ठा भी सा यकीन जानो कि मैं कद संजीदगी नाल अपना बिजनेस कीता ही नहीं सा आया बैठा भी नहीं पूरा कम्मे तो दी ये कर छोड़ो अगर उतनी मेहनत जितनी असां इत्थे मेहनत करने अगर पाकिस्तान ही की जाए और मैं मशवरा दे सा अपने दोस्तों अपने अजीज़ां की बिलीव करो कि जड़ा तुस उत्थे टाइम ज़ाया करने हो वो ना करो और अपने कारोबारां पर तवज्जो दियो। अगर कारोबार ने तुसां करने छोटा मोटा कोई कम भी करने तो उसकी प्रॉपर तरीके नाल करो जिस तरह हुण असां ने सिर पे ईद बजानी आई हुण असां इत्थे करने जिस तरह मैं यकीन नाल आखी सकना पूरे दावे नाल आखी सकना कि अगर जितनी मैं मेहनत इत्थे करना अगर मैं पाकिस्तान ही की मिलियनेयर वां। सबसे पहले तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो यहाँ पे प्रेजेंट थे, इसके अलावा स्पेशली बाबर साहब और जो उनके दोस्त परवेज़ साहब और ने कासम भाई जिन्होंने हमें इनवाइट दिया उनका बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने बोला कि इससे पहले भी हमने 3-4 डिनर किए एक साथ, उनमें और इसमें ये फ़र्क था कि ये आगे भी दोस्तों ने कासम साहब ने बताया कि 100% जो है वो होम मेड फूड था, तो ये मेन फ़र्क था। और इसके अलावा जो है जायका भी उस फूड का जो है वो काफ़ी अच्छा था, तो अच्छा लगा। और इसके अलावा जो दोस्त वो नमाज का उन्होंने जिक्र किया, जब आप रेस्टोरेंट में होते हैं तो आपको बहुत कम जगह मिलती है, अक्सर जगह मिलती भी नहीं है, तो आपको करीबी किसी मस्जिद में या उनका रुखसत करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आज हमने हमारे एक दोस्त थे उन्होंने नमाज भी पढ़ाई, तो उन्होंने इमामत की और हमने पीछे नमाज पढ़ी, तो अच्छा लगा। घर में इफ्तारी की और घर में ही नमाज पढ़ी, तो उसके बाद नए दोस्तों से मुलाकात हुई
اسد भाई है जैसे, और इसके अलावा जो हमारी आज कमिटमेंट्स थी 2-3 और जगह पे इनवाइट थे, लेकिन हमने चूज़ किया हम हमारे दोस्त जो कासिम भाई, और इसी बहाने यही सोचा कि दूसरे दोस्तों से भी मुलाकात हो जाएगी, आप जैसे दोस्त। तो जैसा कि मैंने सूट पहना हुआ है जनाब, काम से सीधा इधर आ गया, थोड़ा बिजी हो गया था तो घर में, हालांकि कासिम साहब ने बोला था कि ट्रेडिशनल क्लोथिंग जो है हमारा ड्रेस कोड है, लेकिन मजबूरन फिर खावर साहब जनाब लेने पहुंच आए, और फ़ोन पे फ़ोन जो है वो 2-3 उन्होंने, मैं कपड़े चेंज करने वाला था लेकिन उनकी वजह से फिर मैं चेंज नहीं किया। उन्होंने असल में पाकिस्तान में जब हम होते हैं, हमारे जितने भी इवन यूथ जितनी भी है वो वालदैन के पैसों पे ही जनाब, या फिर कोई रिश्तेदार जिस किसी का बाहर हो वो उनको सपोर्ट कर देते हैं, तो लोग जो हैं वो उसी पे गुजारा करते हैं, लेकिन खुद हाथ पैर मारने की कोशिश नहीं करते। अपने अगर किसी विलेज में हैं तो वो चाहते हैं कि हमारे विलेज में ही हमें आके जनाब रिज़्क मिले, वो किसी मतलब डिफरेंट जो सिटी बड़े सिटीज़ हैं उनमें वो जाने की कोशिश नहीं करते। मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल दूंगा, मेरे 2-3 दोस्त हैं जो अभी भी पाकिस्तान में हैं, और उनकी जो मंथली अर्निंग है वो 3 से 4 लाख है, और उन्होंने विलेज को छोड़कर उन्होंने शहर का रुख किया, और शहर में उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिली उनकी। मतलब कहने का मकसद ये है कि आपको अगर आप किसी एक एरिया तक मुख्तस हो जाएं तो उस एरिया में आपको फिर अपॉर्चुनिटीज़ कम लगने लगेंगी। ऑब्वियसली जैसे हमारे आज़ाद कश्मीर के काफ़ी डायस्पोरा यहाँ पे रहता है, तो आज़ाद कश्मीर में जनाब मीरपुर को ले लें, बिम्बर को ले लें, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की जॉब्स ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। तो लोग जो हैं वो समझते हैं शायद कि गवर्नमेंट की जॉब करेंगे तो शायद हमें जनाब पता नहीं क्या हो जाएगा, 60-70 ईयर्स का वेट करेंगे, उसके बाद वो जो पेंशन की मद में कोई लमसम अमाउंट मिलती है वो उस टाइम तक बंदा जिंदा रहता है या नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप बड़े शहरों में निकलें, बड़े शहरों का रुख करें। कराची, लाहौर, इवन इस्लामाबाद जो है, ये यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आईटी के फील्ड में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है आईटी में, और बहुत स्कोप है पाकिस्तान का आगे जाने में आईटी में। बिल्कुल देखिए, ये हमारी बदकिस्मती समझ लें कि अमेज़ोन और पेपल जैसे या ईबे जैसे जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं, ये पाकिस्तान में उस तरह ऑपरेट नहीं कर रहे। कोई चोर स्विच लगाना पड़ता है, फिर यहाँ पे अकाउंट बनाए, वहाँ उस तरह के मामलात करने पड़ते हैं। अगर ये प्लेटफॉर्म जो हैं पाकिस्तान की कौम को मिल जाएं तो एक बड़ा रेवोल्यूशन जो है वो मिल सकता है हमें। पेपल नहीं है अभी तक उस तरह का इफेक्टिव। अमेज़ोन का जो है, आप देख लें, हमारे नेबर कंट्री को देख लें, इंडिया को, वो आईटी सेक्टर में कहाँ पहुँच गए हैं। उन्होंने आईटी वैलीज़ बना ली हैं अपने कुछ सिटीज़ में। और इसके अलावा अमेज़ोन की एक्सेस है, ईबे की जनाब एक्सेस है। इसके अलावा जो और ट्रेडिंग के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी एक्सेस वहाँ पे मौजूद है। इसी वजह से उनकी जो जीडीपी है आज देखिए कहाँ है, और हमारी जो है वो कहाँ पे। आप बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश की जो ग्रोइंग इकॉनमी है वो कहाँ पे और हमारी कहाँ पे है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हमारी तरफ से सब तो पहले तो है कासम भाई की, बाबर भाई की, जिन्हें जिन्हें अफ्तारी कराई, और बहुत शुक्रिया जनाब। बड़ा अच्छा लगा। सारे परवेज साहब, परवेज भाई, सारे संगी दोस्त इकट्ठे हुए, कुछ मुलाकात, कुछ बंद पहली दफ़ा हुई, कई पहले भी मिल चुके हैं। तुसा पहले मुलाकात हुई नहीं, काफ़ी दफ़ा इंटरव्यू दे रहे हो, तो बहुत शुक्रिया जनाब, ढाडी याद रहे। या कना बदो या कना सताई वेलकम करने आ जेड़े अज असां जेड़े दावत बुलाया इत्थे जिले असां तकरीबन 2000 विच असां मैं इत्थे आया इस मुल्क जेड़ा कुछ असां रही के इत्थे जो कुछ बनाया ना, अगर मैं सोचे हमारी सोच है, अगर पाकिस्तान में रही के मैं ना समझ सकता। ठीक है, इस वक्त कोई शक नहीं कि पाकिस्तान जैसे बिजनेस करने चाहिए अपने अपना बिजनेस नहीं है ऐसी, लेकिन तुसां की जेड़ी इत्थे फैसिलिटी है और जेड़ा जे इत्थे तुसां की मौके मिले ना, बस किस्मती है साड़ी मुल्क का निज़ाम ये जो है तुसां की अगर जाना वास्ते भी बड़ा कुछ सिफारशें तक बहुत सारे पैसे चाहिए होना, लत्ता छिड़ने बड़े होने। इत्थे अगर तुसां चाहो ना तो तुसां कुछ करो सो एक मौके का लिप सके, लेकिन इत्थे रही गया असां बहुत कुछ बनाया पाकिस्तान वास्ते भी और पाकिस्तानी फैमिली वास्ते बड़े एक गरीब घराने तलक से, लेकिन असां इत्थे रही गया बहुत कुछ बनाया, अपने आप की खड़ा किया, अपने दोस्तों यारां की मदद की। तले कासिम साहब बनो ये साढ़े पुराने माड़े उस्ताद है, इन्होंने बड़ा पन है जी। असल में असां थोड़ी जी कोशिश की इन्हों की
ਪੰਡਾਲ ਕੰਮਾਂ ਲਵਾਉਣ ਦਾ और जी इन्होंने थोड़ी जी कुछ किया अज माशाल्लाह अपने एक डिपार्टमेंट सुपरवाइजर ने ऐसा आदमी पाया कि यकीन करो कि इसी हूँ तकरीबन 11-12 साल है उस काम करने 13 साल है कदा ऐसा वक्त नहीं आया भी इसी वजह कुछ साड़ी डिपार्टमेंट लड़ाई हुई है या इसी वजह कोई साढ़े कोई बंदा कम छोड़ के ला गया हुआ है जी। मैं अगर अजकल ऐसा हालात नहीं कि 10 इकट्ठे बंदे कम करने में तो वही करना मैं जुलिया इस तंग किए PTI नून या फिर पार्टी नहीं कि नजरिया होना चाहिए। हमारी सोच ये नजरिया है कि असा कि हमेशा ही सिखाया गया कि असा 2013 में छोड़ी है। 2013 में पहले ऐसा कि ये दसा गया भाई ऐसा कि पार्टी लुटी गई पार्टी का जरदारी डाकू का खाई गया वो लुटी खादा लेकिन जिला ऐसा कि इमरान खान आया वो शो दिता सब तो अगर ज़्यादा अगर पाकिस्तान की डैमेज किया तो पार्टी नहीं नवाज शरीफ देखो शेख रशीद की उस चोर है कुछ बिल्कुल आख्या उसकी उस परवेज लाई की भी डाकू आख्या उस असा मन्ने जी कुछ खामियां है इमरान खान जी मतलब कुछ अगर फर्ज करो ये अज तू 2013 च आख्या सी जवेद हाशमी इमरान खान की कि या कुछ राह फौजियों ने आखने पर नहीं ये अवाम अज तक साजता ना 2024 जो इमरान खान नाल जुल्म किया गया उसने बावजूद लोगों कि करेला लपड़ाया गया किसी की बैंगन लपड़ाया गया किसी की बेंच लपड़ाया गया किसी जूता लपड़ाया गया लेकिन लोग लोड़ के वोट पाए जवेद हाशमी आखिया सी कि फौज ने तो फैल कंधे बचाई के नाच इमरान खान जी खामियां है ना जिस समाज ही बनने अगर काश अगर जवेद हाशमी ने इमरान खान गल मनी होनी आज जेल च ना हुआ इमरान खान ने पार्टी अंदर चोर उसके अंदर इमरान खान जाते खुद नहीं ये मेरे काम ने उस्ताद भी है तो बड़ी शफकत भी करने क्योंकि मैं बिजनेसमैन सा मैं कदे हाथ नाल काम कीता नहीं सा मेरे को बड़ियां मिस्टेकां भी होनियां ये सुपरवाइजर भी है बड़ा दरगुजर करने समझाने भी है बड़ी शफकत भी करने जिथे जियां नजरिए नहीं तल्लक आ वो तो सन ब्रेक ने टाइम एक मुनाजरा होना तो और उसने भी तो असा बिल्कुल एक दूसरे की माफ़ी ना देने उस्ताद की शगिर्दी तो एक आधा मनसब है उस एहतराम ये साढ़े भाई है उस्ताद भी है इन्हें गल की है एक कार मैं अजफ कर सा जुत्ते आला बाकी तो असा इन्हें की बैंगना करेलिया की खाना सड़ाक बनना सा और असा इलेक्शन वाले दिन असा इन्हें की खादा खूब इंजॉय किया ठीक है जी एक जड़ी चीज़ ना ही उसकी अजफ करने है और नहीं ठीक है मैं पोलिंग एजेंट भी सा यारी सियासत नाल ज़्यादा बसकी भी है मैं खुद भी चेयरमैनी इलेक्शन भी लड़िया पर बिलीव कर सो माड़ी जड़ी ऑब्जरवेशन ही या माड़ी सोच ही कि यंगस्टर जड़े ना उन्हें PTI नज़र जोर समय उसने कदे भी ना आखना लेकिन उन्हें भरपूर तानरी करने की कोशिश की थी हर पोलिंग स्टेशन पर मजामत की थी और नजायज़ वोटा पाने की कोशिश की थी और ये जड़ा यंगस्टर की मैं समझना पाई है माजरा नाल सर माड़ी सुनिया जरा क्योंकि तो ये सारी जड़ा बदतमीजी ना कल्चर दिता गया जड़ा छोटे बड़े ने अदू दरबा ख़त्म किया गया कोई गल करने करसी बड़ा असाने वालदैन से बड़ा एहतराम करने हूँ भी करने इंशाल्लाह पहले भी करने से लेकिन एक कल्चर बिल्कुल ख़त्म हो गया हूँ जैसी कोई गल कर सो ना पटवारी की गल करने तो यंगस्टर साढ़े भरा आए मेरा इतफाक नाल ये होया कि माड़ी जी परवश सी करबार ही आया ना तो मैं माड़ा उठन बैन ज़्यादा बुजुर्गों नाल हो गया उस टाइम भी दोस्त जोड़े से साढ़े माड़े को बड़ी फीलिंग अजीब जियां किन्ने होने से आने से जरा तू हर वेले बड़ियां को लेकिन बिलीव करो कि बड़ियां को ही अच्छा ना लगे सर जी जिस मैं वो पहला इलेक्शन आज़ाद खलते से बस इतफाक कुछ ऐसा होया कि साड़ी पार्टी भी धड़ेबाजी सी कुछ माड़ी सियासी नाराज़गी सी राय मोहम्मद अली साहब नाल तो मैं ओपनली मैं सपोर्ट की थी पर शायद अब्बासी साहब की नीति बोर्ड जड़ी है क्योंकि मेरे को मुनाफकत नहीं होनी बाद लोग ये करने खुफिया तौर पर लेकिन मैं ओपनली हो गया मेरी बड़ी मजामत उठानी पई 10 साल ना हाँ जी और लोग कैसे कैसे अल्फाज आने से ज़ाहिर पार्टी भी थले और ऊपर और लेकिन मैं सारा कुछ बर्दाश्त किया लेकिन मैं खड़ा रहा जितना तक सगीर साहब ना तल्लक आ जी वो एक प्रॉपर वर्कर आ
ਆਵਾਮੀ ਲੀਡਰ ਆ ਉਹ ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ ਨਖਰਾ ਠਖਰਾ ਕੋਣੀ ਉਹ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਅਪਰੋਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ भेजना हर बंदे की बाई नेम जाना हो उसकी पता हो सी कि इसने कराने कितने फ़र्द है कैसा हिसाब किताब आ इस वजह से उसकी लोग पसंद करने और उस जड़ी वोट की दी वाकई अपनी करदगी और अपनी ज़ात नहीं वोट की ठीक है उसकी जड़ा इफेक्ट होया जिस वेले उस पार्टी चेंज की है राजगीर साहब और PTI चाहे उन्होंने मजामत करनी पई लेकिन उन्हें सर्वाइव करी उन्होंने कोई खास उस तरह ना नुकसान नहीं आ लेकिन हूँ माशाल्लाह मेहनत भी कर रहे फंडिंग भी इलाके में उन्होंने काम भी बहुत कराए और उन्होंने फोन हर वेले आवाम वास्ते खुले होने उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी अगर किसी भी पार्टी जाने से ना खास कर राजगीर की लेकिन उन्होंने बाई पार्टी जड़ी सी ना वो जिस टाइम पे PTI भी गए से हकीकत है वो परेशान रहने से मेरे तो बहुत उन्होंने दोस्ताना सी ना तो वो कहने से यार अल्लाह यार कोई ऐसे हालात पैदा हो कि मैं अपनी जगह अपने घर वापस ताजी साड़ी पार्टी की आया ये और ठीक नहीं और एक आम यार बनया असा कि तुम बादर भी नहीं होना ना जड़ा कुछ आखना ये तो जिमनी एक ट्रेड बनाई गई PTI ने लेकिन मैं समझना कि खान साहब भी माशाल्लाह छोटे जे चोर तो भी है ना छोटी छोटी कड़ी चोर है ये नहीं कि क्या चोरी जी लखा नहीं तो जी कखा चोर चोर ही होना और खान साहब की एक खूबी है और डिक्लेयर चोर है समझ लगी ने और सर सर शिगिरदा ना भी इतना ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਜੱਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਮ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਨੇ ਪਾ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਚੌਥਾਂ ਲਈਆਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪੋ ਤਾਂ BMW ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਜੇ ਮਨਸੂਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੱਟ ਦਿਓ सबसे पहले तो सारे भरा वेलकम आखना बड़ी खुशी हुई आए हो खबर आए तुस आए हो आए बर्मिंघम सु आए हो इत्थे और हूँ अछना अजकल इस दौर यार बंदा अपने कम्मा च लगा ये सारे भरा बड़ा शुक्रिया के आए हो दूई गल आखनी वो मेहनत नहीं तो वाकई अस सुबह ने अज लगे हैं मैं तो भाई कासम और ज़्यादातर भाई कासम और जड़ा प्रोग्राम स्टार्ट ना किया उन्होंने आइडिया सा इफ्तारी की जाए उन्होंने गल की बाबर साहब सब तो ज़्यादा इन्हें क्रेडिट जाना कि इन्ना जड़ा तुस वास्ते कड़ी बनाई होप पे तुस लाइक की उसी और इन्होंने मेहनत है खलूस दिला ना बनाई ने असा की बड़ा चंगा लगा मेहनत की कुछ घर लिया सारिया ने किया उन्होंने भी बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने भी जड़ा हथा सारे भरा ये जड़े अगे पिछे आए इन्होंने सारे मदद इमदाद की और बड़ी खुशी हुई जी असा ये 2-3 असा कज़न हैं असा कट्ठे उत्थे बोर्न होए तो पाकिस्तान कट्ठे बड़े हैं फिर आए कोई पहले आए कोई बाद आए भाई नदीम हो रहे कासम हो रहे असा कट्ठे कम करने रहे फैक्ट्री जितना ये करने रहे ना मैं भी उत्थे कम करना रहा तकरीबन मैं तो कासम भट्टी कट्ठे ही तकरीबन उत्थे लगे सी नदीम और काफ़ी पहले ने से ना भाई और सूट चंगा लाया तो चंगी बास्केट लाई ना ते बहु टाइम पर आए असा कि ना आया कि 3 बजे आशना तो आप तकरीबन 5 बजे आए बिल्कुल ठीक आया तुम इतों अस कई बंदे जिन्हें अस जानने भी कोई ना कोई कुतरू आया कोई कुतरू आया अस कट्ठे बई भरा खादा इक्या जाई खादा कट्ठे नमाज पढ़ी कुछ जड़े जिन्होंने 24 रोजे तो कुछ ने 5 कि 3 हाँ कुछ ताक रात मनाने पे कुछ कल मना सन लेकिन सारे भरा अस कट्ठे बई खादा ना अस कोई नून ना तुसा ना लग्या गल हुई कोई PTI ना आया मतलब है कि सारे भरा बई बैठे हैं इत्थे रली मिली खादा बड़ी खुशी हुई इंशाल्लाह अंदा जिंदगी रही तो फिर ये प्रोग्राम होने रहे इस ना कई बंदे फायदा हो जाना जिथे जिस दिला करे पिया मैं तो आना कि तुसा असें एक दूसरे की नहीं करना चाहिए ना कि तुसा कियां करने हो जिथे जिसकी राज फैक्ट्री च काम करने नहीं ये फायदा हो जाना अब बड़ी गल है कि एक दड़ा असा नहीं पहले हो सी तो इन्होंने तंदूर शुर खुले हो सन रोटी असा किड़ियां सा दूए दड़ा इन्ना नहीं हो सी तो असा ने खुले हो सन किड़ियां सन ना ना मैं ना रोला गोला कैसी करो चलना पे चलो ते मौलविया ना काम साड़ा कम थिया कोई नहीं अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहना कासम भाई ना भाई परवेज रोना और भाई बाबर रोना ना बहुत अच्छी इफ्तारी साढ़े दी है जिथे सारा घर ना बनता खाना बड़ा ज़बरदस्त सा खास करी ते बहुत जड़े हांडी बनती सी चावल और उसके बाद इन्हें हलवा पेश किया वो भी बहुत ज़बरदस्त और पक्की चाह इतना तो अपना ही टेस्ट सी
बहुत ज़्यादा शुक्रिया वंस अगेन जी भाई कासम भाई बाबर और भाई परवेज़ और ना साड़ी बहुत अच्छा वेलकम किया। मैं अपनी तरफों भी जनाब बहुत शुक्रिया अदा कर सकना कि होममेड अफ्तारी ना ठीक है बाहरों तो करते ही रहने से सारा कुछ सी लेकिन इन्हें इतनी मेहनत की थी सौखा नहीं होना घर विच सारा कुछ बनाना बड़ा टाइम देना पैना ना बड़ा टाइम कढ़िया दोस्तों वास्ते भरावां वास्ते बाबर भाई ना परवेज भाई ना ते कासम भाई ने बहुत शुक्रिया अदा करना।